Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and every one of the class 12th on the same platform of the life physics, as you all know that. So let's start. As you all know that in the previous lecture we discussed about the applications of the potentiometer, and without not taking that much time in the starting, let's start our this video जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही हिंट दे दिया था that this lecture is going to be on the basis of numericals related to the potentiometer. So let's have the numericals of the potentiometer, and similarly the numericals of the potentiometer plays a very much important role in the examination, because बहुत बार either in the IIT, if I talk about, so in the last 2 years continuously in IIT JEE mains, the numerical related to the potentiometer is taking its part. तो लगातार 2 सालों से पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल वहां पे आ रहा है अवेलेबल, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस आउट. हम लोग इस चीज को कंप्लीट करेंगे. सो फर्स्टली यू ऑल नो दैट आवर फर्स्ट फोकस ऑन द सीबीएसई. मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि हमारा फर्स्ट और प्रायोरिटी फोकस इज ऑन सीबीएसई, बट it does not mean the lecture that you are covering on the board related to the CBSE that does not help you to in the competition exam. The basic that we are discussing, it is always up to the NEET and the JEE mains. हमेशा ये basic आपको NEET और JEE mains को clear करने में बिल्कुल help करेगा. The only extra thing that we need for this is the practice of the numericals. केवल numericals का practice ही बाकी रह गया है आपके लिए. So this is the only slightly difference in the competition, और वो हम लोग कंप्लीट करेंगे as we will complete our basic. जैसे ही हमारे बेसिक्स कंप्लीट होंगे हम अपने असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस पे वर्क करना शुरू करेंगे. एंड व्हेन यू सी दोस क्वेश्चन, जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे, यू विल फाइंड दैट दे वर एग्जैक्टली नियरली 80% ये वही क्वेश्चंस हैं, उसी वैरायटी में है, उसी लैंग्वेज में है जो आप यहाँ पे बोर्ड पे और इन दिस लेक्चर आप लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो डू नॉट थिंक दैट कि हमारा मैं बोल रहा हूँ सीबीएसई है, बट इट आल्सो कंक्लूड योर नीट एंड जेईई मेंस एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, एंड आई एम कैटेगराइजिंग दिस पोटेंशियोमीटर इनटू 3 to 4 कैटेगरी. तो इस पोटेंशियोमीटर को मैं 3 से 4 कैटेगरी में बांटने वाला हूँ. in the type 1 category, type 1, type 2, type 3. so इस तरीके से वर्क करेंगे, so you would get very much effective to that. So let's start with the first numerical, and you can say this is our type number 1 numerical that I want to discuss with you. What is the type number 1 numerical? If we see on the question is as shown in the figure in the given potentiometer. So we have a potentiometer, the null point for the two cells E1 and E2. So we have two cells here, E1 and E2 means two unknown cells. The null point or the balance point is when they are connected in a manner as shown in the figure. तो वो दोनों कुछ इस तरीके से connected हैं जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है. The null point are 120 centimeter and 300 centimeter. Find the E1 by E2 means find the ratio of E1 is to E2. And the second thing he is asking, find the position of null point when the only E1 is connected. क्योंकि यहाँ पे देखिए E1 और E2 कुछ इस तरीके से connected है. In the second point he is asking what would be the null point if only E1 is connected. So that is our diagram. So you all know that कि हम लोगों ने potentiometer का diagram बनाया था while explaining its working, and in the previous lecture while we were dealing with its application. और इस बार diagram कुछ अलग form में है. So this diagram would be preferred for the numerical. Okay, diagram वही है. Main supply, rheostat, okay, they are connected across the potentiometer wire. तो हमने AB wire को सीधा ले लिया है. Okay, across the A point, unknown cell और unknown EMF. Okay, यहाँ पे आप galvanometer लगा सकते हैं. Okay, we have a galvanometer, and this is the jockey. Means that everything is being same here. सारी चीज वही है. But diagram थोड़ा सा simple way में है. तो फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द न्यूमेरिकल, डेफिनेटली हमें कोई लेबलिंग और अदर पार्ट को नहीं रखना है, तो हमने अपने क्वेश्चंस को और अपने डायग्राम को बिल्कुल सिंपल रखा है. सो दिस इज द सेम, दिस इज योर प्राइमरी सर्किट एंड दिस वन इज योर सेकेंडरी सर्किट. सो व्हाट इज द क्वेश्चन इज सेइंग,
क्वेश्चन सेइंग कि हमारे पास दो सेल हैं E1 और E2 और दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। पहले चेक दिस आउट हाउ दे आर कनेक्टेड। आप एक बार चेक कर सकते हैं जूम करके दैट हाउ दे आर कनेक्टेड। दे आर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव, means in the first case both the cells are connected but with same terminal, means opposite polarity. in second case में दोबारा अगली बार वही दोनों सेल हैं, सेम पोटेंशियोमीटर है और दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है that negative terminal of the first is connected with the positive terminal of the second, means they are connected with opposite terminal, means same polarity. तो जब दोनों पहले ऐसे कनेक्टेड थे नेगेटिव विद नेगेटिव तो नल पॉइंट यानी बैलेंस कंडीशन 120 सेंटीमीटर पे मिला, और जब दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड थे मींस अपोजिट टर्मिनल और सेम पोलैरिटी द नल पॉइंट इज 300 सेंटीमीटर। बट इन बोथ द टाइम्स जब दोनों बार ऐसा किया, पहले कुछ ऐसे किया फिर ऐसे किया, द पोटेंशियोमीटर वाज सेम। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस विद यू दैट जब तक पोटेंशियोमीटर सेम है मींस अनलेस अंटिल द पोटेंशियोमीटर इज सेम, the same length of the potentiometer wire, one thing is always same, यानी क्या चीज हमेशा सेम रहेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। प्लीज रिमेंबर ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सो लेट्स हैव द सॉल्यूशन। तो सिंस इन फर्स्ट केस, पहले केस में, तो व्हाट इज योर नेट ईएमएफ जो आप यहां पे ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि देखो अब तक क्या हो रहा था, हम लोग एक सेल लगाते थे, we connect one unknown cell and along with the galvanometer, तो वोल्टेज ड्रॉप उतना ही होगा जितना आपका unknown EMF होगा। But this time not a single cell is connected, the two cells in the combinations are connected. So what would be the net EMF? Negative terminal with the negative terminal. So what would be the net EMF? E1 minus E2. So net EMF E is equal to K L1. And what is the balancing length for this first case? It is 120 centimeters. So E1 minus E2 is equal to K into 120. This is your equation number 1. Means this would be the equation 1 for the first case. क्योंकि दोनों सेल है तो net EMF के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। Now similarly for second case, if you help me out for that, अगर help करेंगे please. So what would be the net EMF in the second? When the negative terminal with the positive terminal, क्या होगा? It would be E1 plus E2 should be equal to KL2, and for this case the balancing length is 300 centimeter. So E1 plus E2 is equal to K into 300. So this would be happening, यानी 120 centimeter आपका लेंथ कब था? When they are connected with same terminal, or you can say opposite polarity. तो जब आपके दो सेल कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं, सेम टर्मिनल और अपोजिट पोलैरिटी, then the balancing length is 120. And when they are connected with, how they are connected? They are connected with opposite terminal, or you can say same polarity. तो जब भी ऐसा होगा तो नेट ईएमएफ E1 प्लस E2, यानी इस बार नेट वोल्टेज ज्यादा है, तो नेट ईएमएफ ज्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा ही होगा। एंड व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप इज मोर, तो ऑब्वियसली बात है वोल्टेज ड्रॉप जितना ज्यादा होगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी उतनी ही दूर जाएगी। सो एम आई क्लियर विद दैट E1 एंड E2? सो वंस वी आर क्लियर विद द E1 E2, हमें क्या चाहिए? E1 by E2। लेट अस सॉल्व बोथ द इक्वेशन। सो बाय 1 and 2, so let's have the elimination method. E1 minus E2 is equal to 120K and E1 plus E2 is equal to 300K. Okay, so let us subtract or add जो भी चीज आप करना चाहते हो, let us add it. When we add it, E1 E2 cancel, so it becomes 2E1 is equal to 420K or E1 is equal to 210K. So what we got? We got the value of E1. तो चलिए ऐसे ही E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर E1 आ गया तो E2 की वैल्यू में हेल्प करेंगे मुझे। सो बाय 1 लेट अस प्लेस इन द 1 में रख देते हैं या 2 में रख दो, आपकी चॉइस है। सो E1 इज हाउ मच? 210K माइनस E2 इज इक्वल टू 120K और E2 इज इक्वल टू 90K। डन?
90 टाइम्स ऑफ द K. What is the meaning of K? K means potential gradient जो कि constant रहेगा first case में भी और second, because the potentiometer was same. And once we have E1 and E2, can we solve the first part? So thus what would be E1 divided by E2? So E1 divided, E1 is 210K, E2 is 90K, and when we solve that, it would be 3 3s are 3 7. So what is the ratio of E1 by E2? It is 7 by 3. So this is your first part of the first type of numerical. So this is your first type of numerical. जहां पे हमें k को यूज नहीं करना पड़ा. This is the important thing. इसे अलग वैरायटी में मैंने क्यों रखा? Why I placed this numerical? Because he asked for the ratio first of all. And when you all know that when someone is asking for the ratio, अगर कोई आदमी किसी भी चीज के रेशियो के लिए पूछ रहा है, कंपैरिजन के लिए पूछ रहा है, so in the comparison जब भी करते हैं तो कुछ चीज तो ऐसा होगा जो कैंसिल होगा. Like if I ask you find the ratio of power in two cases, दो केसेस हैं या दो रजिस्टर्स हैं, उनमें पावर का रेशियो निकालो. If they are connected in series, so we will go with the formula I square R. Why we go with the formula I square R? Because in series the I remain mean the current remain the same and I square cancel with the I square और हम रेशियो निकाल सकते हैं. Similarly अगर पैरेलल कनेक्शन होता तो हम लोग V square by R को प्रेफर करते हैं. अगर पैरेलल कनेक्शन है और आप I square R फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो अब आप कैंसिल नहीं कर सकते, अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. So to make our ratio very much easy, हमारे रेशियो को आसान और जल्दी बनाने के लिए हम हमेशा वो टेक्निक या वो तरीका ढूंढते हैं जिसमें कुछ चीजें कैंसिल हो जाएं, so that we can have to solve it less. So here हमारे पास k नहीं है, मगर अगर आपको k निकालना है, so what is the formula for k जो हम लोगों ने सीखा है for the numerical purpose? The formula for the potential gradient is voltage across AB wire means the potentiometer wire divided by the length of AB wire. बट ना तो हमें वायर का लेंथ दिया है यहाँ पे कहीं पर न्यूमेरिकल पे, ना ही AB के पास कितना वोल्टेज जाएगा, तो मेन सप्लाई भी नहीं दिया. तो पहली बात यहाँ पे k कैलकुलेट ही नहीं हो सकता. बट अदरवाइज अगर मैं आपको लेंथ दे दूं, if I give you the length, if I give you the voltage of AB, I'm not asking calculate the potential gradient. मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, बट आपको लेंथ और वोल्टेज भी दे दिया मैंने आपको फॉर द कंफ्यूजन पार्ट. क्या आप उसे कैलकुलेट करेंगे? क्यों कैलकुलेट करें? Why would we calculate? Because हमें चीज रेशियो निकालना है, और हमें रेशियो निकालना है तो हम k को सेम रखेंगे क्योंकि k तो कांस्टेंट ही रहेगा. Because k can only be changed. k का वैल्यू तभी चेंज होगा जब AB के अक्रॉस वोल्टेज बदलेगा. AB के पास वोल्टेज अगर कम ज्यादा हो जाए तो, और वो कब हो सकता है? या तो आप मेन सप्लाई को बदल दो या आप इस एक्सटर्नल रजिस्टर यानी रियोस्टेट को बदलो. अगर इस रजिस्टर को बदलेंगे तो इसकी वोल्टेज अलग जाएगी, वो अभी डिस्कस करेंगे. Either you change the length of wire, length of potentiometer wire. So k तभी चेंज होगा जब इन दोनों में से कोई फैक्टर चेंज हो, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. यहाँ पे बस केवल क्या हो रहा है, टू केसेस में सेल को लगाने या कनेक्ट करने का पोलैरिटी बदला जा रहा है. पहले अपोजिट पोलैरिटी थे, बाद में सेम पोलैरिटी, बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स सेम है. So that's why the k will remain the same and this will give you the ratio. Done? Now, what is the second part he's been asking here? The second part he is asking position of null point when only E1 is connected. तो null point का position निकालना है कि अगर यहाँ पे केवल E1 ही connected होता. So check this out. Since I am talking about the second part, what we get? Since E1 is equal to 210K, ये हमें मिला. E1 is equal to 200K, but ये हम जानते हैं, but we know that E1 is equal to K times of balancing length of 1. मान लीजिए कुछ भी होता है. देखो ये बैलेंसिंग लेंथ कब है? 120 जब दोनों सेल अपोजिट पोलैरिटी में है. 300 बैलेंसिंग लेंथ कब है? जब दोनों सेल सेम पोलैरिटी में है. तो एक जनरल एक्सप्रेशन आता है ना, E is equal to KL. This is your general formula. EMF is equal to potential gradient into balancing length. तो जब EMF E1 minus E2 था तो बैलेंसिंग लेंथ 120 था, जब E1 plus E2 था तो 300 था.
तो जब ओनली इवन होगा तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सो दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन, सो जनरली E1 is equal to KL, and when we compare that K के साथ K कंपेयर कर रहे, so the what is the balancing length? So what is the balancing length that you got from here? So the balancing length is 210 centimeter. Centimeter because starting से सारा वर्क सेंटीमीटर में चलता आ रहा है. Okay, so balancing length is 200 centimeter. तो ये किसका balancing length हुआ? जब आपका कौन सा सेल कनेक्टर हो, ओनली E1 कनेक्टेड हो. बट इफ आई आस्क, अगर मैं एक क्वेश्चन बदलूं, व्हाट वुड बी द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन ओनली E2 इज कनेक्टेड? क्या अगर हो बैलेंसिंग लेंथ, अगर केवल E2 ही होता, E1 नहीं होता, केवल E2 लगाया होता, तो E2 का एक्सप्रेशन क्या मिला? 90 के. तो इसका मतलब ये 90 E2 की बैलेंसिंग लेंथ है, ये 210 E1 की बैलेंसिंग लेंथ है जो सॉल्व करने के बाद आई. 120 किसकी बैलेंसिंग लेंथ है? E1 माइनस E2 की बैलेंसिंग लेंथ है. और 300 कब बैलेंसिंग यानी नल पॉइंट मिला? जब दोनों सेल्स सेम पोलैरिटी से थे. आई होप यू गॉट द फर्स्ट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल. डन इट? सो प्लीज नोट इट डाउन द न्यूमेरिकल. आपको ऐसा क्वेश्चन एक असाइनमेंट में और प्रैक्टिस में मिलेगा. सो प्लीज नोट इट डाउन द फर्स्ट एंड हैव द सॉल्यूशन प्लीज. Okay students, this is our type 2 numerical that we are going to start or that we are going to discuss. So this type numerical is being pretty different from the type 1. तो ये 1 से बहुत अलग है. But this type of numerical, if you understand the type number 2 numerical, definitely you will understand the type number 3 and then the type number 4. Okay, so in this type of numerical we are going to proceed some procedure. एक तरीके से कहते हैं ना, कुछ प्रोसीजर के साथ जाएंगे. But as I told you, if you understand the type 2 numerical, definitely it will help you to solve or to complete type 3 and type 4 by 70 to 80%. अगर आपने टाइप 2 समझा तो आपके नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे. So what does this question gives me? We are going to collect the data and we are going to solve this out. So first of all, what is the question? Let's start with that. So a 10 meter long potentiometer wire. So first of all, यहीं से idea हुआ. So what is 10 meter? It is the length of potentiometer wire and wire is always A to B. ये हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड नाम ले लिया हमेशा. So what has been given to us? हमारे पास क्या अवेलेबल है? What we have? Length of potentiometer wire. कितना? 10 meter. As I told you, अगर आप लोग इसे मीटर में रखना चाहते हैं तो हर लेंथ को मीटर में रखिए, और अगर आप इसे सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो हर लेंथ को सेंटीमीटर में रखिए. इट इज योर चॉइस. लेट अस कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. मैं सेंटीमीटर में लेके चल लेता हूं, आप इसे मीटर से भी ट्राई कर सकते हैं. सो व्हिच इज हाउ मच? It would be 1000 centimeter. So 1 meter 100. So let us multiply with that. So the length of potentiometer wire is 1000 centimeter. Now, of uniform cross section has 20 ohm resistance. So please read the whole line. A 10 meter long potentiometer wire of uniform cross section has 20 ohm resistance. तो ये 20 ohm किसका resistance है? वायर का. And the name of wire is AB. So the resistance of AB is 20 ohm. Got it? Now the wire is connected with 5 volt. So as shown in the figure, the wire is connected with 5 volt. तो ये 5 volt हमारी कौन सी सप्लाई है? मेन सप्लाई. So this is our main supply. अगर आप इसे वापस से रिवाइज करें तो ये हमारा मेन सप्लाई है. ओके, आप इसे V नाम दे दो, कैपिटल E नाम दे दो, जो आपको देना है दे दीजिए. और ये हमारा कौन सा सर्किट है? मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं. इट इज आवर प्राइमरी एंड दिस वन इज आवर सेकेंडरी. ओके, सो मेन सप्लाई 5 वोल्ट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 ओम. तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम रियोस्टेट लगाते थे ना, सो दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 480 ओम. जो इंफॉर्मेशन है वी आर गैदरिंग. इफ unknown EMF is balanced, हमारे पास एक unknown EMF है E. It is balanced at 600 centimeter. Okay, sorry, my mistake. It has been 600 centimeter. So it is balanced at how much?
600 centimeter. So what is the 600 centimeter? It is your balancing length. तो ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ है. हाउ मच? 600 सेंटीमीटर. I converted the length of AB wire into centimeter क्योंकि मुझे आगे सेंटीमीटर दिख रहा था. अगर मैं इसे मीटर में रखता हूं तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना because it will help you. Now he is asking calculate first of all potential gradient and second unknown EMF. This is the diagram along with the question. और अगर नहीं भी आता है तो आपके दिमाग में डायग्राम होना चाहिए. प्राइमरी सर्किट होगा, एक सेकेंडरी सर्किट होगा. चलिए प्राइमरी सर्किट की क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो मेंशन कर देते हैं. सिमिलरली फॉर द सेकेंडरी वी हैव अ गैल्वेनोमीटर जॉकी, और गैल्वेनोमीटर ने नल पॉइंट कहां पे दिखाया? 600 सेंटीमीटर पे. गॉट इट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 1. चलिए शुरुआत करना शुरू करते हैं पार्ट 1 से. सो व्हाट ही इज आस्किंग इन द पार्ट 1? पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो पार्ट 1 में वो हमसे क्या पूछ रहा है? Potential gradient K, it is equal to voltage across AB divided by the length of AB wire. This is the formula जो हम लोगों ने न्यूमेरिकली यूज करने के लिए पहले लिखा है कि AB के पास कितना वोल्टेज जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ वायर, ताकि हमें वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मिले. तो चलिए, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है. If we want to calculate K, हमें क्या चाहिए? Length of AB. Do we have or not? क्या हमारे पास है length of AB? Yes sir, we have. But the second problem, हमारे पास AB की वोल्टेज नहीं है. तो चलिए इस पे काम करना शुरू करते हैं. And let us study which circuit? प्राइमरी सर्किट को पढ़ना शुरू करते हैं. भाई ध्यान से देखो इस टेक्निक को और तरीके को देख लो. थोड़ा सा अलग है बुक से, मैं एक डायग्राम अलग से बनाता हूं, बुक यूज नहीं कर रहा है. But let us try to have this technique. So we have a primary circuit. हमारे पास प्राइमरी सर्किट है. चलिए ड्रॉ करते हैं प्राइमरी सर्किट को वापस से. 5 वोल्ट, 480 ओम, और यहां पे क्या लगा हुआ है? AB वायर. एक AB वायर एक ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम. सो आई विल ड्रॉ द रेजिस्टेंस. मैं इस वायर को रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख देता हूं. RAB which is equal to 20 ohm. Got it? This was your R. This was your main supply. ये हमारा प्राइमरी सर्किट है. इसके अलावा फिर हमारा जो दूसरी तरफ था वो हमारा सेकेंडरी सर्किट था. तो हमें क्या चाहिए? Check this out. What we need? We need voltage across AB. हमें AB की वोल्टेज चाहिए. What is the AB? AB means potentiometer wire. Potentiometer wire means एक ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है. तो इसका मतलब अगर हमें AB का वोल्टेज चाहिए तो हम रेजिस्टेंस AB का वोल्टेज निकाल लेते हैं. भाई 20 ओम का जो भी वोल्टेज होगा वही तो AB का वोल्टेज होगा, क्योंकि ये 20 ओम किसका रेजिस्टेंस है? वायर का. तो सीधी सी बात है, हमें इस 20 ओम की वोल्टेज चाहिए. सिंपल सा सवाल आ गया. वी नीड द वोल्टेज ऑफ 20 ओम, और 20 ओम मींस AB. तो हमें इस 20 ओम की वोल्टेज चाहिए. तो अब ये तो सिंपल सर्किट है यार. ये तो 10th क्लास में भी न्यूमेरिकल होता था कि सर्किट को सॉल्व करके इसका वोल्टेज निकालना है. तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व. तो चलिए हेल्प करो मुझे सॉल्व करने के लिए. तो पहले नेट रेजिस्टेंस. सो हेल्प मी. व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट? आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सर्किट. तो नेट रेजिस्टेंस 480 20 ohm. Which connection they are in? Series connection. So the net resistance is 480 plus 20. I am taking this symbol as a R dash ले रहा हूं मैं पे. तो कितना हुआ ये? It is 500 ohm. नेट रेजिस्टेंस मिल गया सर्किट का. नेट वोल्टेज 5 वोल्ट. सो व्हाट इज द नेट करंट? तो बताइए नेट करंट कितना होगा? I is equal to V by R means net resistance 5 by 500 is equal to 1 by 100 ampere. So what is the current through the circuit? इस सर्किट से कितना करंट जा रहा है? 1 by 100 ampere. This is the amount of current which is flowing through this circuit. तो since 480 और 20 कौन से कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन. और सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट. तो इसकी वोल्टेज, सो वोल्टेज अक्रॉस AB. ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और ये बहुत सिंपल है. सो वोल्टेज अक्रॉस AB V is equal to I into resistance of AB. V is equal to IR. बट I कौन सा I? जो सर्किट में से फ्लो कर रहा है, जो कि सेम होगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है. सो इट वुड बी हाउ मच? 1 by 100 into resistance of AB. कितना?
20, and when we solve this, what we got? Voltage across AB is equal to how much? 1 by 5 volt. Am I clear how we resolve? और हमने voltage across AB, अगर simple language में बोलूं, हमने voltage across AB का arrangement यानी जुगाड़ कैसे किया, हमने कैसे arrange किया उसे. So we have to study the primary circuit. हमने net resistance निकाला, I निकाला, ताकि क्या आ सके? Voltage across AB. अब simple है, तो ये आपका equation 1. So by 1, K is equal to voltage across AB is how much? 1 by 5 divided by length of AB is how much? 1000 centimeter. So what is the K value? 1 by 5000 volt per centimeter. This is the potential gradient. यानी कितना है potential gradient? 1 by 5000 volt per centimeter. मतलब अगर इसे सिंपल में वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब 1 by 5000 वोल्ट ड्रॉप होगा 1 सेंटीमीटर पे. अगर 1 सेंटीमीटर वायर को क्रॉस करते हैं तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 1 by 5000. दिस इज द इंफॉर्मेशन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें देता है, एंड वी कैलकुलेटेड द पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो प्लीज रिमेंबर दिस टेक्निक कि हमने k का वैल्यू कैसे निकाला. सो कैसे निकाला? फॉर्मूला, हमें वोल्टेज ऑफ AB चाहिए और लेंथ ऑफ AB चाहिए. तो लेंथ ऑफ AB तो है हमारे पास, अब वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए हमें सर्किट को स्टडी करना पड़ेगा. वोल्टेज अक्रॉस AB चाहिए, इसका मतलब जो भी वायर का रेजिस्टेंस है कितना? 20 ओम, यानी 20 ओम की वोल्टेज चाहिए हमें. तो उसके लिए हमने सर्किट को नेट सीरीज में सॉल्व किया, करंट निकाला. सिंस करंट दोनों में सेम है तो वोल्टेज अक्रॉस AB, एंड दैट्स वी हैव द की. आई होप यू गॉट इट. ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन दिस टेक्निक. इसे ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि ये टेक्निक आने वाले बहुत जो भी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन बच गए, द वैरायटी ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आर लेफ्ट हियर, सब में यूज यही होने वाला है भाई. इसलिए बोला टाइप 1 एक थोड़ा अलग है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये सारे एक जैसे ही चलेंगे, लगभग 70 to 80% सेम है. वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो हम लोग कैच आउट कर लेंगे. गॉट इट? सो दिस इज योर टाइप नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट. आई एम रबिंग नाउ. ओके, नाउ सिंस हमने यहां से k का वैल्यू निकाल लिया, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द k दैट वी गॉट? 1 by 5000 वोल्ट पर सेंटीमीटर. अगर कोई मीटर में रखना चाहता है, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस है. नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट? ही इज आस्किंग अननोन EMF. क्या? अननोन EMF. तो हम जानते हैं अननोन EMF क्या होता है? k into its balancing length. कि भाई वो नल कंडीशन कहां पे जाके दिखा रहा है, यही तो है ना. पोटेंशियोमीटर वर्किंग E is equal to KL, क्योंकि अननोन EMF इतना होगा जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी. वोल्टेज ड्रॉप, लेट्स सपोज इट इज C. सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AC, A से लेके C तक कितना वोल्टेज गिराया, और कितना गिराएंगे? जितना अननोन EMF होगा. तो E is equal to K into L. सो अननोन EMF K कितना है दैट यू कैलकुलेटेड? 1 by 5000, और बैलेंसिंग लेंथ यानी नल पॉइंट कितने पे मिल रहा है? इट इज 600 सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर बेटा ये भी वोल्ट पर सेंटीमीटर था. यू कैन डू विद द यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर. सेंटीमीटर कैंसिल विद द सेंटीमीटर, बट अगर आप इसे मीटर में रखते हैं तो आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इट इज हाउ मच? 0000. सो EMF is equal to 6 by 50. I will multiply with the 2 and divide with the 2. मैं कर रहा हूँ. Why? It will become 12 by 100 volt, and EMF become 0.12 volt. Okay, I do this because I want 100 in the denominator ताकि मेरा डेसिमल आराम से आ जाए. अगर आप कैंसिल करके फिर करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है. वो तो पर्सन टू पर्सन टेक्निक और प्रोसीजर, कैलकुलेशन कितना आसान करना वो आप देखिए. So I multiply with the 2 and divide with the 2 so that denominator में क्या आ जाए? 100, और 50 into 100, 50 into 2, sorry 100, और 100 को डेसिमल में करना आसान है, मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. That's my choice, और ये आपका भी हो सकता है. तो what is the second part? What should be the unknown EMF? Unknown EMF कितना होगा ताकि बैलेंसिंग लेंथ 600 आए? It should be 0.1. Got it? This is our type number 2 pneumatic. Type number 2 pneumatical. Now
वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन द टाइप नंबर 3 and 4, हम उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी मैं आपको टाइप 2 में ही बता देता हूं कि टाइप 3 में क्या होने वाला है और टाइप 4 में क्या होने वाला है। तो टाइप 1 तो बिल्कुल अलग था, जहां पे हमें दो पोलैरिटी के बेसिस के दिए ताकि हम रेशियो निकाल सके, एंड अगर हमें रेशियो निकालना है तो आई थिंक वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट द के, हमें के निकालने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट नाउ इन दिस टाइप 2 अब से जो क्वेश्चन शुरू हुए उसमें हमसे क्या पूछा, अननोन ईएमएफ। सो अननोन ईएमएफ हैज अ फार्मूला k into L, तो उसने हमसे क्या दे दिया, बैलेंसिंग लेंथ दे दिया और ईएमएफ कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो डेफिनेटली हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके बिना तो नहीं आ सकता ना अननोन ईएमएफ। ओके, दैट्स वेरी गुड थिंग कि इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ लिया, he asked for the potential gradient, but what would happen if I do not say the first part? मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में बात ही नहीं करता हूं, मैं आपसे सीधा कहता हूं then calculate unknown EMF, unknown EMF निकालिए, इंफॉर्मेशन सारी यही है, तो डेफिनेटली unknown EMF निकालना तो k तो सर फिर भी ही निकालना ही पड़ेगा। यानी If I ask to calculate something, अगर मैं आपसे कोई चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूं, वो टाइप 1 को हटा दीजिए, अदरवाइज अगर मैं आपसे पोटेंशियोमीटर में I ask for calculate the EMF या आगे वाली चीज, तो सर K तो निकालना ही पड़ेगा। विदाउट कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट आप किसी भी पर्टिकुलर चीज का वैल्यू नहीं निकाल सकते। गॉट इट? सो दिस इज या इंपॉर्टेंस कि आपको के तो तरीका आना ही चाहिए, एंड द टेक्निक जो हमने अभी अभी सीखी है के वाली, प्लीज उसको प्रैक्टिस करना है अ लॉट ऑफ टाइम, आपको उसे एक बार देखना है, एंड वंस यू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इन योर पॉकेट, एंड इफ आई गिव यू द मार्क्स बेटा, इट विल कैरी योर 3 मार्क्स, 3 नंबर है, पूरे 3 मार्क्स न्यूमेरिकल, and you know that in the physics the category is always be divided into 1 marks, 2 marks, 3 marks and 5 marks. तो in the physics you have 4 category of the marks, तो obviously बात 1 marks में है नहीं, 2 marks को लेके ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है, 5 marks का कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है। if I give you the basic idea, please let me clear, there is no such single numerical in the physics 12th class or 11th class which contain 5 marks, कोई अकेला ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो 5 नंबर का आता हो सीबीएसई में, सिंगल न्यूमेरिकल के बारे में बात करो, ऐसा नहीं है। whenever you see the 5 marks, जब भी आप 5 marks के क्वेश्चन को देखेंगे इन योर क्लास टेस्ट भी आपने देखा, जब भी 5 marks का क्वेश्चन आता है उसके सब पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, तो अगर आप उन्हें डिवाइड करें मार्क्स बेसिस पे तो फिर वो वही 3 marks 2 marks इस तरीके से डिवाइड होते हैं, 3 2 3 1 1 2 2 1 ऐसे पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। तो इसका मतलब 3 marks इज द हाईएस्ट सिंगल न्यूमेरिकल कैरिंग नंबर, 3 नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल है फिजिक्स में, इससे ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं कि 5 नंबर का कोई एक न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल है जो 5 नंबर पे जाएगा, एक नहीं, ऐसा नहीं है, उसके सब पार्ट्स होंगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कोई दो चीज छोटी छोटी और पूछूं, मान लीजिए इफ आई गिव दिस न्यूमेरिकल, along with that I ask one single question, which material is preferred to use the potentiometer wire and why, एक नंबर का वो क्वेश्चन ऐड कर दिया इसका बी पार्ट बना के। ओके, नंबर 3, what are the mistake or what are the errors a student can do so that galvanometer is not showing the deflection, मतलब क्या गलती हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दिखाई, हमने लास्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक नंबर का वो बना दिया, तो बताइए कितने मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स, ऐसे बनता है 5 मार्क्स। और अगर ऐसे बनता है तो अगर हम एक सिंगल न्यूमेरिकल को देखें तो आई थिंक अब हम पोटेंशियोमीटर यानी इलेक्ट्रिसिटी के उन क्वेश्चंस को कैच आउट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंटली डायरेक्टली जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। तो आई थिंक आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। Okay, this question was asked in Delhi 2006. Now, as I told you, this was the procedure. तो type 2 हमसे क्या पूछा, K तो पूछेगा ही पूछेगा, okay? हमसे second part में क्या पूछा, unknown EMF. So I have balancing length, K I have calculated, unknown EMF आ जाएगा। चलो, type 3 मैं यहीं पे करवा देता हूँ भाई, ये रहा type 3 numerical. Type 3 numerical, I will give you everything, but I will not give you balancing length. मैं आपको सब कुछ दूंगा बट बैलेंसिंग लेंथ नहीं दूंगा, बट उसकी जगह पे आपको क्या दे दूंगा,
अननोन ईएमएफ की वैल्यू दे दूंगा. आई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस बट आई विल एलिमिनेट दिस. कैन यू डू दिस क्वेश्चन? के की वैल्यू आ जाएगी, वो आप सॉल्व कर लेंगे. के आ गया, अननोन ईएमएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. आई विल प्रोवाइड यू द अननोन ईएमएफ. अभी हम लोग ट्राई करके देखेंगे एंड आई विल आस्क फॉर कैलकुलेट द बैलेंसिंग लेंथ. हो सकता है भाई टाइप 3. डन ना? चलिए अब आ जाइए टाइप नंबर 4 पे. टाइप नंबर 4 न्यूमेरिकल कैटेगरी बांट रहा हूं. टाइप नंबर 4 न्यूमेरिकल जिसमें मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूं वो आप देखिए. आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग. आई विल प्रोवाइड यू ईएमएफ. ईएमएफ मैं आपको दूंगा, ओके, ठीक है. मैं आपको बैलेंसिंग लेंथ भी दूंगा, ओके. मैं आपको एबी वायर की लेंथ भी दूंगा, ओके. मेन सप्लाई भी दूंगा, बस आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दूंगा. आई विल मिस दैट. टाइप नंबर 4 में सब कुछ दूंगा, बस ये मिस कर दूंगा. एंड आई विल आस्क कैलकुलेट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. हैव यू गॉट द टाइप नंबर 4? डन. तो आई थिंक आप 3 और 4 की वैरायटी को समझ गए कि क्या मिलने वाला और क्या नहीं मिलने वाला. अब प्रोसीजर कैसे चलेगा, वी विल स्विंग सू इट. अभी हम लोग इसे देखते हैं, चलिए कैसे काम करने वाला है. ओके एवरीवन, सो आई एम टेकिंग द नेक्स्ट टाइप नंबर 4 पे जा रहा हूं मैं सीधा. टाइप नंबर 3 के बारे में जैसे मैंने आपसे बात किया एग्जैक्टली सेम होगा, जिसमें आपको ईएमएफ मिलेगा और लेंथ निकालना है. तो टाइप 2 और टाइप 3 तो आप बोल सकते हैं 95% कॉमन है. Okay, so I am leaving the type 3 numerical आप पे. तो in the assignment if you got such type of a numerical जिसमें आपको balancing length निकालनी हो, so आप उसके साथ work कर सकते हैं, same method में जाएगा. Now I want to discuss type 4 की लगभग वैसा ही है, but I personally want because थोड़ा सा calculation इसका लंबा जाता है, थोड़ा सा हमें patience रखना है. And along with that, in 2011 it was the part of the IIT. So CBSE में भी पूछा गया था 2013 फॉरेन सेट. तो 2013 फॉरेन सेट में ये पूछा गया था, but in IIT में it was also the part of 2011. So let's start with this question. So first of all, what is the part that is given to us? So a potentiometer wire of length 100 centimeter. So the length of AB is 100 centimeter. हम लोगों ने रट लिया है, दिमाग में बैठा दिया कि वायर को तो AB ही लेना है. And as I told you that the potentiometer wire length can vary from 1 meter to 10 meter. और ये बेस्ट एग्जांपल है. The last numerical जो हमने ट्रीट किया that contains the length of 10 meter. और ये numerical जो हम लोग कर रहे हैं that contains the length of 1 meter. तो हमारी जो लेंथ है वो 1 से 10 मीटर तक हो सकती है. तो इनडायरेक्ट वे में इन दोनों numerical ने हमें ये चीज दिखा दी है. So length of AB has resistance 10 ohm. So 10 ohm is the resistance of wire. क्योंकि उसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो थोड़ा इंग्लिश को भी अच्छा प्रेफर करते हैं. It is connected with a 2 volt battery. So your main supply is how much? 2 volt. Okay, connected across external resistance R. तो ये हमारे लिए external resistance R है. And EMF of 10 millivolt. Small m means millivolt. तो unknown EMF जिसे हम लोग unknown के नाम से जानते थे, वो EMF हमें मालूम है 10 millivolt. Milli means 10 power minus 3. So what is the unknown EMF? 10 power minus 2 volt. Okay, okay. Unknown EMF इसका नाम है, जैसे हमने दिया ना. Since both are the cell, दोनों ही सेल हैं, तो दोनों के पास EMF है, बट इसे हमने मेन सप्लाई का नाम रखा है, इसे अननोन का कैटेगरी का नाम दिया. जैसे हम लोग इस सर्किट को प्राइमरी बुलाते हैं और इस सर्किट को हम लोग क्या बुलाते हैं? सेकेंडरी. गॉट इट? सो दिस इज योर पार्ट. ओके, इट इज बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर. तो हमें बैलेंसिंग लेंथ भी दे दी इस बार. तो जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हमें इस बार सब कुछ मिलेगा. So the balancing length is 40 centimeter. Calculate the external resistance. So let's start with that. चलिए काम करना शुरू करते हैं. तो since we know that what is unknown EMF formula, general formula क्या है? E is equal to K into balancing length. Okay, we know the unknown EMF. हमें मालूम है K और balancing length कितना है? 40. ये तो हमें मालूम है. तो यहां से हमें K का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1/4000 वोल्ट पर सेंटीमीटर.
आई थिंक दिस इज द अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग द K. तो हम यहां से K का वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो द नॉन ईएमएफ एंड वी नो द बैलेंसिंग लेंथ. हमें दोनों चीजें मालूम है. ओके, बट हमारा K कैलकुलेट करने का ट्रेडिशनल तरीका क्या था? ट्रेडिशनल मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूं ये सीखना है. तो सिंस हम जानते हैं, इसे इक्वेशन 1 रख लेते हैं. सिंस K इज इक्वल टू, हमारा तरीका क्या है? वोल्टेज अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB. तो हम तो अपने तरीके से चलते हैं. तो डू वी हैव लेंथ ऑफ AB? यस सर, वी हैव द लेंथ ऑफ AB, बट क्या नहीं है? वोल्टेज ऑफ AB. अब AB का वोल्टेज निकालने के लिए कौन सा सर्किट पढ़ना पड़ेगा? प्राइमरी सर्किट पढ़ना पड़ेगा. सो चलिए प्राइमरी सर्किट को एक बार देख लेते हैं. इट इज 2 वोल्ट, इट इज R and this one is RAB which is equal to 10 ohm. चलिए सॉल्व करें हमारे तरीके से. तो हमारा तरीका क्या था? हम नेट रेजिस्टेंस निकाल के, नेट करंट निकाल के वोल्टेज ऑफ AB निकालेंगे. सो प्लीज हेल्प मी. व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस? R dash, it is equal to R plus 10. You should go with your own technique. जो हमने तरीका सीखा चलिए उसी तरीके से. R की फॉर्म में आ रहा है, आने दो, नो प्रॉब्लम. जिस भी फॉर्म में चल रहा है लेट इट बी लाइक दैट, बट हम चलते जाएंगे. डू वी हैव नेट रेजिस्टेंस? कैन वी हैव नेट करंट नाउ? क्या हम नेट करंट निकाल सकते हैं? I is equal to V by R. तो V is 2 by R plus 10. This is your net current, 2 by R plus 10 ampere. And once we have the net current, हमें जैसे नेट करंट मिल गया सर्किट से, can we calculate the voltage of AB? So the voltage across AB वायर से, VAB is equal to I into resistance of AB. So what is the I? You have, हमारे पास I कितना है? 2 by R plus 10. And what is the resistance of AB? Which is always 10. Okay? So हमारे पास voltage of AB क्या बन गया? 20 divided by R plus 10. This is the voltage of AB. तो हमारा K क्या आएगा? So thus K is equal to voltage of AB divided by length of AB. Voltage of AB बताइए? 20 by R plus 10. डिवाइड में क्या जा रहा है? लेंथ ऑफ AB, which is how much? 100. 25 and K is equal to क्या बना? 1 by 5R plus 50. This is the value of K, जो हमारे वाले तरीके से आया जैसा हम करते हैं. बट R was unknown, तो हमने R की टर्म में रहने दिया. बट हमारे पास अननोन EMF था, बैलेंसिंग लेंथ थी, तो हम K वहां से भी तो निकाल सकते थे. तो आई थिंक हमें K की दो वैल्यूज मिल गई. दिस इज इक्वेशन 2. सो कैन वी कंपेयर बोथ ऑफ देम? सो बाय 1 and 2. So 1 by 5R plus 50 is equal to 1 by 4000. और 5R is equal to कितना जाने वाला है वो अब आप यहां से एक बार सॉल्व करके देखेंगे इसे कि that how much it is being going to. If I cross multiply and then subtract, so it would be 3950. और R is equal to 7. 5 7 जा 35. 90. So what is the value of the resistance, external resistance? 790 ohm. कितना आया हमारे पास? 790 ohm. This is your type number 4 question जो हमें यहां से देखना है to calculate, जिसमें ये दोनों मिलेंगे. तो आप समझ पाए होंगे. टाइप 2 में क्या था? R था, बैलेंसिंग लेंथ थी, EMF मिसिंग था. टाइप 3 में क्या होगा? EMF होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा और बैलेंसिंग लेंथ मिसिंग होगी. बट टाइप 4 में क्या हुआ? बैलेंसिंग लेंथ है, EMF है और R मिसिंग है. गॉट इट? दैट्स व्हाई वी गॉट दिस. ओके, नाउ व्हाट इज, एक और चीज जो छोटी से पॉइंट से मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन ना एवरीवन? सो नाउ प्लीज नोट इट डाउन दैट नाउ आई वांट टू डिस्कस वन स्मॉल मोर थिंग. एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. दैट दिस वाज द प्राइमरी सर्किट, 2 वोल्ट, इसके पास अपना एक रजिस्टर है और ये वायर ऑफ AB है. तो रेजिस्टेंस ऑफ AB के पास वोल्टेज ऑफ AB कितना गया वो हम कैलकुलेट करते हैं. बट व्हाट हैपन अगर यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टर भी ना हो? व्हाट विल हैपन?
तो अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर ही नहीं है तो बताइए AB के पास कितनी वोल्टेज जाएगी, कितना जाएगा, जितना मेन सप्लाई है, सीधा सा बात है, यहाँ पे कोई आया ही नहीं ना। मीन द लॉजिक इज दैट जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रजिस्टर होगा दैट रजिस्टर इज इन सीरीज, और सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, बढ़ जाता है, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज अलग अलग होगा, तो इसके पास वोल्टेज 2 वोल्ट नहीं जाएगी, फिर वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ी। बट अगर मैं क्वेश्चन को सिंपल रखूं, इफ आई टेक द क्वेश्चन सिंपल, बहुत इजी, वैसे तो वैरायटी में यही आते हैं, बट इफ आई टेक द क्वेश्चन वेरी मच इजी, सिंपल रखना चाहता हूं, बहुत आसान। I haven't used the external register, मैंने कहा यहाँ पे कोई रजिस्टर ही नहीं, तो बताइए AB के पास कितनी वोल्टेज आएगी, तो AB के पास कितनी वोल्टेज, जितना पूरा सेल है, यानी सीधे सी बात है, ये एक फैमिली है, प्राइमरी का फैमिली है, और इसमें एक चाइल्ड है, तो इस फैमिली में एक ही चाइल्ड है, तो भाई जो भी मिलेगा सारा इसी को मिलेगा, मतलब खाना पीना पैसे जो भी है, अकेला बच्चा है ना, तो सारा मौज ही लेगा। अब अगर उस फैमिली में एक और आ गया भाई सीरीज में, भाई उसका एक और भाई है, आप बटेंगे भाई, अब बंटवारा होगा, सीधी सी बात है, अब दोनों के पास अलग अलग जाएगा, दोनों के पास कंटेंट अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में आ गए। तो जब तक एक्सटर्नल कोई बड़ा भाई है ही नहीं, सिंगल चाइल्ड है, तो सब कुछ उसी का है भाई, 2 वोल्ट सारा वही ले जाएगा। बट अगर कोई रजिस्टर आ गया, कोई ब्रदर सिस्टर कुछ भी आ गया, तो बंटवारा तो होगा भाई, वो भी छोड़ेगा भाई, उसके पास भी वोल्टेज जानी चाहिए, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है ना, तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सो इस पॉइंट को भी याद रखना है। नाउ एट द एंड आई वांट टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एट द एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर। आप लोग इसे टाइप नंबर 5 क्वेश्चन बता सकते हो, सो विदाउट टेकिंग दैट मच टाइम, ओके, आई विल लीव दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आपके असाइनमेंट में पुट अप रख दूंगा, एंड दिस क्वेश्चन इफ आई डिस्कस वाज आस्क्ड इन 2000, तो बहुत टाइम पहले आया था, बट 2000 में था, 2000 दिल्ली सेट में, ओके, तो आप इसे टाइप नंबर 5 बोल सकते हो, बट आई विल नॉट सॉल्व द टाइप नंबर 5 कंप्लीटली, आई विल जस्ट ओनली डिस्कस विद द डायग्राम। दिस इज आवर 2 वोल्ट मेन सप्लाई, दिस इज your 15 ohm external resistor, we have a potentiometer wire of length of AB is 1 meter, you will get the question in the answer, आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिल जाएगा, so it is 100 centimeter, and the resistance of this potentiometer wire is 10 ohm, so it is 10 ohm in resistance में है ये वैल्यू, ओके। बाकी अगर डाटा हमारे पास डायग्राम में है, वी हैव वन मोर सेकेंडरी सर्किट, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया यहाँ पे भी, गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज द पार्ट, ओके, सो दिस सप्लाई इज 1.5 वोल्ट, दिस इज 1.2 ohm and this is 0.3 ohm, okay, and he is asking us calculate the balancing length for that, वो हमसे पूछ रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ निकाल के दो। सो ये कहीं ना कहीं टाइप नंबर 3 के साथ मैच करता है, जहां पे हमें बैलेंसिंग लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो चलिए एक बार जल्दी से काम कर देते हैं, K = VAB by LAB, अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा, और K को पढ़ने के लिए हमें कौन सा सर्किट पढ़ना पड़ेगा, प्राइमरी, 2 वोल्ट 15 ohm and the AB wire resistance of AB is 10 ohm। पहले प्राइमरी को पढ़ना है, सेकेंडरी को डील नहीं करना है, ओके। तो चलिए व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, प्लीज मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूं, आप इसे पूरे प्रॉपर वे में अपने फेयर में ही करेंगे। सो द टोटल इज 25 ohm, 15 plus 10, so what is the net current, 2 by 25 ampere, V by R, okay। So what is the voltage across AB, I into resistance of AB, what is I, 2 by 25 and resistance of AB is 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, so voltage across AB is how much, 4 by 5 volt। So what would be the K, K कितना आएगा, VAB by LAB, VAB कितना है 4 by 5, और लेंथ ऑफ AB कितना है 100 सेंटीमीटर, so it becomes 4 by 500 volt per centimeter।
अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो थोड़ा और तो आपकी मर्जी है. If you want to go, it would be 25. So K can also be 1 by 125 volt per centimeter. I think we got the K. अब यहां से थोड़ा सा इसमें चेंजेस आया. So if he asks for the simple कि भी हमारे पास एक अननोन है, बैलेंसिंग लेंथ निकालो, E is equal to K, तो हम लोग काम कर सकते हैं. तो V drop is equal to K into L. Okay, why I use this word, मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि अब तक हम लोग क्या लिख रहे थे, E is equal to KL. Why we use, because in actuality the formula तो यही था, the voltage drop is equal to K into L, means balancing length के पास relate है. But voltage drop हमेशा उतना ही होता था जितना unknown EMF होता था, क्योंकि in the secondary circuit there was only the unknown EMF जो कि वहां पे लगा हुआ था. Okay, but यहाँ पे चीज अलग है. So this is similarly like the second application of the resistor, second application of potentiometer, जहां पे हम लोगों ने एक resistance box connect किया था. So now the point is that 0.3 ohm को देखिए please. This end of the 0.3 ohm is at A. ये वाला जो end है वो A पे connected है, and the another end is connected at C. तो voltage drop कितना होगा अक्रॉस AC, उतना ही होगा जितना वोल्टेज अक्रॉस 0.3 ओम होगा, बिकॉज 0.3 ओम AC वायर के साथ पैरेलल कनेक्शन में जा रहा है. जो हम लोगों ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स लिया था ना, वैसा ही इस बार यही होगा. जितना वोल्टेज 0.3 ओम के पास होगा उतना ही वोल्टेज AC के पास जाएगा, बिकॉज 0.3 ओम AC के पैरेलल कनेक्शन में. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. तो इसका मतलब अगर हमें पहले L निकालना है तो पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, और वोल्टेज ड्रॉप उतना ही होगा जितना 0.3 ओम के पास वोल्टेज होगा. यानी इस क्वेश्चन में हमें सेकेंडरी सर्किट फिर से पढ़ना पड़ेगा. वी हैव टू स्टडी द सेकेंडरी सर्किट. चलिए सेकेंडरी सर्किट पढ़िए. 1.2 ओम, 1.5 वोल्ट एंड 0.3 ओम, सॉरी 0.3 ओम. ओके, गैल्वेनोमीटर ये नहीं, क्योंकि यहां से कोई करंट ही नहीं जा रहा है ना, नल कंडीशन. तो सेकेंडरी सर्किट को स्टडी करते हैं. तो हमें किसकी वोल्टेज चाहिए, हमें 0.3 ओम की वोल्टेज चाहिए. अब वो कैसे निकालोगे, दैट थिंग आई एम लीविंग टू यू. वैसे ही पढ़ना जैसे ये पढ़ रहे हैं प्राइमरी. हमें इसकी वोल्टेज चाहिए तो फाइंड आउट करो. तो हमें अब इसकी वोल्टेज चाहिए, बिकॉज 0.3 ओम का जो भी वोल्टेज होगा वही AC के अक्रॉस जाके ड्रॉप होगा. तो V ड्रॉप कितना होगा इस बार, EMF के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर सेल में, अगर डायग्राम में केवल 1.5 लगा होता यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप 1.5. बट इस बार सर ने या टीचर ने, एग्जामिनर ने चेंजेस लेके आ गया 0.3 ओम. तो इस बार AC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जितना 0.3 ओम के होगा. अब वो आप सेकेंडरी सर्किट को सॉल्व करके निकालो कि इसकी वोल्टेज कितनी है. अब मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे. इसकी वोल्टेज निकालिए, वही वोल्टेज जो 0.3 ओम की होगी वही ड्रॉप होगी. के आपने निकाल लिया. आई नीड द बैलेंसिंग लेंथ. L का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेफ्ट कर रहा हूं, और एज सून एज जैसे ही आप इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, प्लीज फॉरवर्ड मी द आंसर फॉर द बैलेंसिंग लेंथ, वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट. So 50% काम मैंने किया, the rest of the 50% आप लोग करेंगे. You will get this question completely. थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे एक और लॉजिकल चीज आपसे डिस्कस करनी है, तो लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया. You will get this question completely in your assignment. आपको अपने असाइनमेंट में मिल जाएगा with the name of example 169. इस बात को याद रखिए प्लीज. Example 169 is the question of this. इसका क्वेश्चन है वो. तो हाफ आंसर मैंने कर दिया, कंप्लीट आंसर आप लोग करेंगे प्लीज अपने फेयर में. आई होप यू गॉट इट. सो प्लीज मैं इस आंसर का वेट कर रहा हूं. व्हाट वुड बी द बैलेंसिंग लेंथ, मुझे वो आंसर चाहिए. नाउ विद दिस क्वेश्चन आई कैन कंप्लीटली से यू कि हम लोग पोटेंशियोमीटर का हर वैरायटी कर चुके हैं, जितना वैरायटी हमारे पास अवेलेबल हो सकता था. वैरायटी बोल रहा हूं मैं, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे सेकंड एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल आ जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, E/V -1 * कैपिटल R, जो हम लोगों ने यूज किया था ना, L1/L2 -1 * कैपिटल R,
L1 बैलेंसिंग लेंथ जब रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड नहीं था, L2 इज द बैलेंसिंग लेंथ जब रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्ट कर दिया, तो तब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास दो सेल है, फर्स्ट सेल जिसका बैलेंसिंग लेंथ L1 पे है, सेकंड सेल बैलेंसिंग लेंथ L2 पे है, तो दोनों को कंपेयर हम लोग कर सकते हैं L1 by L2। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वैरायटी से था जिसमें पोलैरिटी बेस्ड था, बट अगर हम फर्स्ट एप्लीकेशन से जाएं तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो गए जो आपको मिल जाएंगे और आप लोग उसे आराम से कर लेंगे। बट माय पर्पस ऑफ दिस लेक्चर टू डिस्कस दी वैरायटी एंड यू नो दैट्स व्हाई हम लोगों ने केवल पोटेंशियोमीटर पे थर्ड लेक्चर डन कर रहे हैं। हम लोग अपना हम पोटेंशियोमीटर पे तीसरा लेक्चर, वन लेक्चर फर्स्ट लेक्चर वाज टू अंडरस्टैंड इट्स कांसेप्ट, वर्किंग कैसे काम करता है, सेकंड लेक्चर वाज अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशंस एंड थर्ड लेक्चर इज टू अंडरस्टैंड इट्स न्यूमेरिकल्स। सो आई होप आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि एक ऐसा टॉपिक जो आपके 3 लेक्चर्स ले गया। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जितने भी 15 16 आई एम नॉट परफेक्ट काउंट विद दैट कि व्हाटएवर भी द लेक्चर्स हम लोगों ने जितने भी दिए हैं 16 17 18 इतने लेक्चर्स में से कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी में से 3 लेक्चर्स आपका केवल एक टॉपिक ले गया। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आई थिंक आप इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ रहे हैं। इट डज नॉट मीन कि बाकी इंपॉर्टेंस नहीं है, किरचॉफ भी है, मीटर ब्रिज भी है, बट ये बन सकता है यहाँ से, तो इस बात को प्लीज होल्ड इट आउट रखना। नाउ एट द एंड और फाइनली द फाइनल थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, दैट वन सिंपल इन द फेयर नोटबुक, एज यू ऑल नो दैट कि जो भी चीज हम लोग यहाँ बोर्ड पे करते हैं, whatever be the thing that we discuss on the board in the lecture, everything जो मैंने यहाँ बोर्ड में मेंशन किया है, you have to note it down in your notebook as a notes। वो आपके नोट्स हैं बेटा। असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन मिलता है, आपको अगर क्वेश्चन वैरायटी है, मैंने पहले भी किया था, अगर आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलता है, प्लीज आप अपने फेयर में उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसे सॉल्यूशन रफ में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्वेश्चन को मेंशन कर लीजिए सो दैट एट द एंड आप उस पर काम कर सकें। ओके, अगर आपको कोई टैग लाइन का मिलता है, कोई अलग वैरायटी का मिलता है कि नहीं यार ये तो डिफरेंट है, मैंने सॉल्व किया बट अच्छा क्वेश्चन था, तो आप उसे रख सकते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही गए कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे जाके स्टैंड करता है। So let's discuss one or the final thing that I want to discuss from the potentiometer, and that final thing is a simple logical part जो मैं आपसे discuss करना चाहता हूँ। So simple question पे आ जाता हूँ। This is my main supply, done. This is my external resistor capital R. We have potentiometer wire A, B. We have unknown supply, हमारे पास एक unknown supply है E, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ S with galvanometer G and we have a balancing length L। ओके, चलिए, तो ये सिंपल सर्किट है जो पोटेंशियोमीटर का होता है। अब मेरे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इज हाउ डज द balancing length get affected means balancing length किस तरीके से अफेक्ट करेगा। नंबर 1, if capital R is increased, अगर मैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, if S is increased, okay, and number 3, if S dash is increased, okay, S dash वो मैं अभी थर्ड पार्ट बाद में बनाऊंगा यहाँ पे। so here we have S dash, यहाँ पे हमारे पास एक और रजिस्टर है S dash, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। so there are 3 वैरायटी, यानी हम बैलेंसिंग लेंथ को, यानी लॉजिकल क्वेश्चन जो आई पर्सनली एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मैंने यहाँ पे देखा है और हम लोगों ने समझा है, एंड दिस क्वेश्चन इज दैट। चलिए एक बार बात करना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो आई एम जस्ट ओनली राइटिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज, आप लोग इसे बेस्ट वे में लिखेंगे। ओके, बोर्ड में कभी भी एरो साइन यूज नहीं करना बेटा। तो सीबीएसई में नॉर्म्स कंडीशन है कि आप लोग केवल
वही प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं जो आपके पास बेस्ट है, तो वो बाकी अगर नहीं कीजिए। तो अगर r इंक्रीज होता है तो अभी केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं। इफ r इंक्रीजेस, अगर हम इस r को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्लीज बात को समझना। अगर हम इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है, मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया, बैटरी मेन सप्लाई, एक्सटर्नल आर और प्राइमरी सर्किट में ये आर ए बी है, बिल्कुल है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये भाई ना हो, अगर इसकी फैमिली में कोई आर ही ना हो, एक ए बी वायर है, तो सारी वोल्टेज यही ले जाएगा। ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट की 10 वोल्ट आर ए बी के पास गया। अब आ गया इसका एक और रिलेटिव, यानी घर में एक और कैंडिडेट आ गया। अब दो लोग हैं, दोनों सीरीज में, तो अब ये दोनों में बंटवारा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसके पास चला गया 6 वोल्ट और इसके पास चला गया 4 वोल्ट। अब सुनिए, अगर आप इस रजिस्टर को बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज दिस रजिस्टर, कैपिटल आर को बढ़ाएंगे, तो कैपिटल आर को बढ़ाओगे तो कैपिटल आर के अक्रॉस की वोल्टेज ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। मोर बी द रजिस्टर, मोर बी द वोल्टेज, V is equal to IR, क्योंकि I तो सेम है। तो पॉइंट इज दैट मोर बी द रेजिस्टेंस, मोर बी द वोल्टेज अक्रॉस इट। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे इसके अक्रॉस की वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। और इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज बढ़ता है तो लेट्स सपोज इसकी वोल्टेज 7 वोल्ट हो गई, तो बताइए ए बी के अक्रॉस वोल्टेज टोटल कितनी थी 10, तो इसके अक्रॉस तो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो पॉइंट इज दैट कि अगर हम इस रेजिस्टर को बढ़ाते हैं तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे हुआ, क्योंकि अगर इसके अक्रॉस आर को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज अक्रॉस आर बढ़ेगा, और अगर आर की वोल्टेज बढ़ेगी तो ए बी के पास वोल्टेज कम ही जाएगी, क्योंकि दोनों सीरीज कनेक्शन में और नेट वोल्टेज वही की वही है जो पहले मेन सप्लाई थी। तो इफ वी इंक्रीज द आर, वोल्टेज अक्रॉस ए बी डिक्रीजेस, और अगर वोल्टेज अक्रॉस ए बी डिक्रीज होता है तो के बी डिक्रीज होगा, बिकॉज के हैज अ फॉर्मूला वी ए बी बाय एल ए बी। ओके, तो अगर वोल्टेज ए बी का कम होता है, ओके, तो आर बढ़ाने से ए बी का वोल्टेज कम हो रहा है और जिससे के कम होगा। एंड वी ऑल नो दैट अननोन ईएमएफ इज इक्वल टू के एल और एल इज इक्वल टू अननोन ईएमएफ बाय के। ओके, तो अननोन ईएमएफ जो है वो सेट है, बट आर को बढ़ाने से वीएबी कम हुआ, वीएबी कम होने से के कम हुआ, और अगर के कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा। This is the answer or the concept of the first type or the first variety of the question. That if we increase the R, the balancing length will increase. Means the jockey will shift towards the point B. Jockey B की तरफ shift होगा, length बढ़ता जाएगा। तो यानी सीधी सी बात है, इस R के साथ हमारी balancing length कैसे relate मिली? Directly, याद रखो। बट आपको लॉजिक पूरा देना पड़ेगा, वर्ड्स में लिखना, मैंने मैथमेटिकली लिखा, यू विल राइट बाय योर ओन वर्ड्स। आई होप यू गॉट इट। इफ आर इंक्रीज, वोल्टेज अक्रॉस ए बी डिक्रीज, ए बी का वोल्टेज कम होगा। कई बार बच्चे सोचते हैं सर आर बढ़ाने से, रेजिस्टेंस बढ़ाने से तो वोल्टेज बढ़ता है, तो सर इसका वोल्टेज बढ़ेगा ना, बट इसका वोल्टेज बढ़ेगा तो ए बी का वोल्टेज कम होगा। ए बी का वोल्टेज डिक्रीजेस, के डिक्रीजेस बाय दिस फार्मूला, और अगर के डिक्रीज होता है तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा फॉर द गिवन अननोन। Got it? So this is our first point. Okay, I can reverse this question कि if R is decreased, तो वो तो obvious सी बात है, R decrease होगा तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यानी ये दोनों डायरेक्टली हैं। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ेगी, और अगर रेजिस्टेंस को घटाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ भी घटेगा। ओके, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हमने एक लॉजिक कॉन्सेप्ट की सीरीज को जोड़ के ये कॉन्सेप्ट बनाया। Got it? Now we will discuss on the second point. What is the second point? इस पे बात करते हैं। Second point is if S is increased, अगर S को बढ़ाते हैं, ओके, अभी ये S डैश नहीं है, S को बढ़ाते हैं, ओके, S मान लीजिए पहले 10 ओम था, अब ये 20 ओम हो गया, तो इसको बढ़ाने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं, बिकॉज अगर आप इसको बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज दैट, तो इसके अक्रॉस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AC उतना ही रहेगा जितना EMF है। Why? Because इस पॉइंट पे, when we are talking about this point, और ये कौन सा पॉइंट है? This point is null point.
मींस द पॉइंट वेयर द करंट इज जीरो, वो पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो जा रहा है, इसका मतलब इस आर्म से करंट कितना है, जीरो। और अगर इस आर्म से करंट जीरो है तो सीधी सी बात है, अगर किसी वायर से जीरो करंट जा रहा है तो वहां पे 10 ओम लगाओ चाहे 20 ओम, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, दैट S will not affect the balancing length, ये बैलेंसिंग लेंथ पे कोई असर नहीं डालेगा, बिकॉज इट इज एट नल कंडीशन, क्योंकि ये पॉइंट कौन सी कंडीशन पे है, नल कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जहां पे कोई करंट पास नहीं हो रहा है। और अगर करंट ही नहीं जा रहा तो 10 ओम लगाओ चाहे 20 ओम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो सेकंड पॉइंट, कोई असर नहीं होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, लेट सपोज आप लोगों ने एच डैश कनेक्ट कर दिया, एच डैश यहां पे है एच डैश। अब बताइए अगर इसको बढ़ाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या होगा। सो द आंसर ऑफ दिस थर्ड पार्ट लाइज ऑन द सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने टाइप 5 में डिस्कस किया था, रिमेंबर। तो when this रजिस्टर comes, अगर ये रजिस्टर आ जाता है तो ये AC के पैरेलल में जाएगा, तो AC के पास वोल्टेज ड्रॉप उतना होगा जितना S डैश के पास। अब अगर आप इस रजिस्टर को बढ़ाते हैं, if S डैश इज इंक्रीज, सो वोल्टेज अक्रॉस S डैश वो भी इंक्रीज होगी। अगर ये इसको बढ़ाते हैं तो इसके पास की वोल्टेज भी बढ़ेगा, और अगर इसकी वोल्टेज ज्यादा होगी, if its voltage increases, so voltage drop भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल कनेक्शन में हो गया AC के। और अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो ये तो हम जानते हैं V drop is directly proportional to balancing length, कि वोल्टेज ड्रॉप लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ेगा। तो यानी यहां से भी क्या पता चला, H dash is directly proportional to balancing length। This is your third point. Okay, इस केस में, थर्ड केस में K पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, K पर। What is the K? K stands for what? Potential gradient. So that's why it will not affect like that. So please, this is your third logical part, and this is whole about that we discuss here. So at the end, with that point and with this whole lecture, I will say that our electricity part is being complete. हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए, आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। एंड एज यू नो दैट आफ्टर 2 days मींस ऑन दी वेडनेसडे ऑन दी 10th, 2 दिन के बाद आप लोगों का लेक्चर है 10th जून 2020, तो आपका टेस्ट है, सॉरी। ओके, यू नो द प्रोसीजर। इफ एनीबडी हैज अ डाउट वो कांटेक्ट कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन, अपने न्यूमेरिकल्स कवर कीजिए, चीजों को डिस्कस कीजिए, जो भी पॉइंट आपके रह गए you will get the assignment of the potentiometer numericals for the practice in the description box, and I would also let you as soon as possible by the evening, जैसे ही आपका ये lecture complete हो जाता है, I will let you know or I will provide you one more assignment for the basis of complete electricity। पूरी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक और असाइनमेंट मैं आपके पास अवेलेबल रखूंगा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट। आप उसे सिलेबस को करने के बाद आप इसे कंप्लीटली प्रैक्टिस कर सकें। सो आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। यू विल डू द कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट ऑल द पॉइंट्स। इफ यू फाउंड एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन हरी अप, क्योंकि इसके बाद आपका टेस्ट है, तो फिर इसके बाद आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, उसके बाद पूछने से कोई बेनिफिट नहीं। सो प्लीज हरी अप एंड नोट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच।